Welcome, guys. Today is 22nd of March. Let's begin our analysis. It is 9:50 currently. Let's begin by looking at 50 minutes time frame. Today we got a flat opening in Back Nifty and a slightly gap down opening in Nifty. Let us begin by analyzing 4-hour time frame. This looks like a correction and a retracement happening here. Just a minute, guys. Yes, so we can see a correction here. You can see it right here. This is a move, correction, and then again a move. It crossed a low here. So our initial point of view is of upside. Let's also look at the 50 minutes time frame in Bank Nifty. What we have here is yesterday we made a trade and it opened gap up and it moved upside and there was a correction. We exited in small loss. We hit our SL before going to TP, and let's shift to 1 minute time frame. What we see, uh, market worked in a range yesterday. After it gave a drop, the trade setup I'm seeing is Nifty is currently taking resistance from its day high, and Bank Nifty is going to break out. Uh, so in this case, I think the breakout is going to fail, but the SL is available on the upper side of the sellers. Uh, there was a large momentum candle which was formed here, and the sellers must be setting at right here. And there's also a resistance level. Also, there's 46,800 का resistance that is available here. Market ने exactly यहाँ से resistance लिया है, and it bounced back from our support zone that we drew. Uh, Also, seeing parallelly in Nifty, what we can see is दोनों तरीके बन सकते हैं. निफ्टी से रेजिस्टेंस आ रहा है एंड बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक हायर पॉइंट क्रिएट करके यहाँ पे जो छोटे मोटे सेलर्स हैं उन्होंने तो पक्का एग्जिट कर दिया होगा. द बिग प्लेयर्स इनकी छोटे मोटे एसएल बचे बस वही रहते होंगे. एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है. रिटेलर्स का देखना पड़ेगा रिटेलर्स कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि दो बार यहाँ से इसने एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट लिया है. सो देयर मस्ट बी बाइंग यहाँ से भी परफेक्ट. इसके बाद एग्जिट करने के बाद उन्होंने पोजीशन को रिबिल्ड किया होगा जब ये दो कैंडल्स बनी हैं देन इसके बाद. सो आई एम थिंकिंग अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी वुड बी ऑप्टिमल हेयर. लेट्स ऑल्सो चेक बाय सीइंग द CPR. Oh, I have removed the CPR actually. All right, so we will be taking put. So it is 47 900 put that we will be buying. So we have entered in 46,800 put. The timing of our entry was at 9:57 a.m. We entered in put 46,800 at the price of 344. Our SL would be limited to 0.15%. That is 50 points in spot premium chart and 70 points in spot chart. Target would be the double. We would get the same approximately result. Let's see. Let me set the target also. Target would be around 444 triple four, and the SL would be 300 minus 6 294. All right, so we have set up both of them. Let's see. Let's wait. All right, so our trade has we have seen a breakout in Nifty, a very perfect breakout. It was taking resistance from this higher point once, twice, and thrice it broke up and बहुत ही अच्छा momentum करा Nifty. Doubt we would be able to hold up in Bank Nifty as well.
क्योंकि लॉन्ग टर्म आपका व्यू भी अपसाइड था एंड आई टुक अ शॉर्ट टर्म अप्रोच ऑन द डाउन साइड. सो आई थिंक वी हैव मिस्टेकन टुडे, बट डायरेक्टली मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहे थे. हो सकता है कि बाय डायरेक्ट बाइंग की हो. लेट्स सी कितना बचा हुआ है अभी भी. All right, so it is not a big thing to worry. We are only one third of our SL down to the way of SL. We might be able to recover क्योंकि ऊपर डाइट साइड पे SL अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेलर्स बैठे थे एज अ सेड कि इतने फास्ट मोमेंटम के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सेट. जो मेजर क्वांटिटी में सेलर्स है दे हैव बुक देयर प्रॉफिट्स, क्योंकि जब यहाँ पे उन्हें इतना अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है एंड देन इट टुक अ शार्प correction like that and they must would have booked their profits. So उसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा सेल साइड का. All right, so we will see what happens. Right now in rupees 300 rupees loss. Let's see. Nifty is currently approaching its closing price. All right, rupees 500 rupees in loss. निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया है. ऑल राइट, सो यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं एंड वी कैन गेट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी है. यहाँ पे करेक्शन आ सकता है एक. एंड इन द सिमिलर फैशन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लिया होगा रेजिस्टेंस टॉप पॉइंट का, कि यहाँ पे इसका हायर वो बन रहा है. छोटा सा उसने ब्रेकआउट भी किया हल्का सा. ऑलराइट गाइस, वी आर सीइंग अ करेक्शन, प्राइस ड्रॉप, क्योंकि लगाई था मुझे ऊपर साइड पर ऐसा अवेलेबल नहीं है. निफ्टी डेफिनेटली गेव अ ब्रेकआउट क्योंकि उसने हायर पॉइंट्स रेजिस्टेंस ले रहा था एंड क्लोजिंग पॉइंट्स रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी भी गिर रहा है एंड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स हायर पॉइंट हल्का सा उसका ब्रेकआउट करने के बाद. We need this momentum to continue in our favor so that we can achieve our target. Right now, we are currently running in a small loss. Let's see what happens. Let's wait and watch. Maybe what market has done is कि market ने जानबूझ के ऐसे resistance लिया to invite new sellers and create new SL so it can proceed further on the upside. So our view might have been wrong. Market major direction was on upside and market wanted to go upside today. We will also get more analysis after finishing our trade, after we finally hit our SL. Until then, whatsoever can happen, Nifty has given its breakout of its closing price. Bank Nifty is going to break its higher point. Alright, so we are going to hit ISL. We almost have hit ISL. Alright, alright, alright. So we are going to make an exit right here. Let's see, let's see, let's see, let's see. We saw a breakout and an alright, so we have hit our SL finally. 753 rupees SL we have hit. निफ्टी में क्या हुआ? Then निफ्टी में भी आपको आपका क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देखने को मिल गया, रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट. सो मार्केट गेट न्यू एसएल. एक ये भी इसका वो था कि मार्केट को अपसाइड ही जाना था, तो मार्केट ने शुरू में क्या किया. लेट मी टेक यू बैक टू द बैंक निफ्टी चार्ट. या लेट अस रिमूव दिस. या सो मार्केट को ऊपर जाना था. सो यू मस्ट हैव हर्ड द idiom that market first breaks your trust and then give you thrust. सो बायर्स को इनिशियली यहाँ पे किसी को बाय करने का मौका मिला नहीं होगा एंड मार्केट गिव अ पॉजिटिव अपसाइड एंड देन जब यहाँ पे करेक्शन आया होगा तो जिन्होंने भी यहाँ पे जल्दी में इस मोमेंटम में भी एंट्री ले ली होगी, यहाँ पे 2-3 कैंडल्स में एंट्री ले ली होगी, उनका भी मार्केट ने सडनली मतलब 50% मतलब एस तो ट्रिगर कर ही दिया होगा यहाँ पे, क्योंकि जितनी मोमेंटम साथ ये एस मिले थे ना मार्केट को, पक्का इन बायर्स के एस कटे हैं. जैसे ही एग्जिट हुए मार्केट टर्न अराउंड एंड इट gave another up move, correction, up move, correction, up move. So market breaks the trust and then give you thrust. Hence proved well today. All right, so I will discuss the analysis after some time. We'll see you. All right. So guys, let us begin an analysis. So मेजरली हमने क्या देखा था, मतलब आज देखा नहीं, मतलब मैं जो सीखा हो अपनी मिस्टेक से, यहाँ पे 47,500 का लेवल था एंड मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ था, मतलब यहाँ पे नीचे आके इट शोड अ लिटिल पॉजिटिव अपसाइड
तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ बायर्स आए होंगे। एंड व्हाट वी कैन ऑल्सो सी बाय लुकिंग एट द चार्ट इज कि आज फ्लैट ओपनिंग मिला था एंड यस्टरडे इसने एग्जैक्टली 47,000 का रेजिस्टेंस लिया था। बायर्स वरेंट एबल टू क्रॉस द 47,000 का लेवल। सो इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं दैट बायर्स आर इन दैट स्ट्रॉन्ग। बायर्स बस डिफेंड कर रहे अपनी पोजीशन को, यहाँ पे सेलर्स असली पैसा लगा रहे हैं। अगर बायर्स में दम होता देन दे वुड हैव डेफिनेटली वुड हैव ब्रोकन दिस 47,000 का लेवल, ब्रेकआउट डेफिनेटली करते हैं, पर उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब सेलर्स में ज़्यादा पावर है। सो आई वुड ऑल्सो गो बाय सेलर्स। इसलिए आज पुट साइड का ट्रेड बना था, बट आर एंट्री वॉज इन करेक्ट। एंट्री में निफ्टी अपने हायर पॉइंट्स रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार 2-3 बार, एंड देन इट डिड अ ब्रेकआउट। सो दैट्स व्हाट वेंट रॉन्ग। एंड इनका सेलर्स यहाँ पे जो यहाँ पे बायर्स आए थे 47,500 का लेवल लेके, मतलब बायर्स अपनी पोजीशन को बस डिफेंड कर रहे हैं, दैट नॉट टेकिंग, मतलब अटैक नहीं कर रहे सेलर्स के ऊपर। एंड 47,500 के ऊपर यहाँ पे इनके रेजिस्टेंस मतलब 47,500 के नीचे मौजूद थे जो भी यहाँ बायर्स आए थे। सो जब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिला तो वी शुड हैव टेकन द ट्रेड ऑफ सेलिंग इन्हें टारगेट करने के लिए, क्योंकि जब इतने अच्छे यहाँ पे सेलर्स आपके प्रॉफिट पे बैठे हैं एंड दे हैव द मेजर फोर्स, दे आर कंट्रोलिंग द मार्केट, दे आर पुटिंग आउट देयर मनी, सो वी कांट थिंक ऑफ टारगेटिंग द सेलर्स दैट आर सिटिंग हेयर क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली 47,000 के लेवल को सेल किया है। सो वी मस्ट बी टारगेटिंग द बायर्स विच आर सिटिंग हेयर हुज एसेल प्रेजेंट हेयर। तो आज हमें यही करना चाहिए था। यहाँ पे मौका मिलते ही वी शुड हैव गॉन ऑन पी ऑन द इनिशियल साइड, बट हमने ये ट्रेड मिस कर दिया बिकॉज वी एंटर लेट इन द मार्केट। एंड उसके बाद यहाँ पे इन जैसे बायर्स के एसएल कटे, इन्होंने एसएल अपने दिए, एंड देन मार्केट गिव अ थ्रस्ट इन द पॉजिटिव अपसाइड डायरेक्शन, क्योंकि एसएल नीचे साइड में कुछ बचे नहीं थे। अगर जाना होता तो मार्केट से जा भी सकता था नीचे साइड पे, बट दिस बिकेम दिस एरिया राइट हेयर, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने पिछले बार प्रेशर लगाया था। दिस एरिया बिकेम अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन एंड ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली यही से सपोर्ट लिया आपका, एंड इट टर्न अराउंड। एंड यहाँ पे आपका यहाँ पे सेलर्स के एसएल कटे, यहाँ पे आपके it retraced and then it went further. Also major reason why we averted buying today because आज हमें एक फ्लैट ओपनिंग मिला था। अगर मार्केट को इन सेलर्स को टारगेट करना ही होता, वी एटलीस्ट वुड हैव गॉट अ गैप अप इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी, एंड निफ्टी में गैप डाउन तो डेफिनेटली नहीं मिलता। सो मतलब अगर 47,800 के ऊपर या इसके आसपास ओपन होता है एंड लाइक इसके थोड़ा नीचे भी होके एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बन जाता, तो 47,800 के ऊपर दीज सेलर्स वुड हैव बिकम कॉशियस एंड they would have become started feeling becoming attacked। तो यहाँ से वी कुड हैव टारगेटेड द सेलर्स, बट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिला था, सो इट वाज अ परफेक्ट अजम्पशन फॉर अस टू थिंक ऑन टारगेटिंग द बायर्स वर द वीक हैंड्स हियर। सो ऐसे साइकोलॉजी बदल जाती है मार्केट की गैप अप गैप डाउन के केस में। क्या पता नई फ्रेश एसएल बन जाए, क्या पता किसी को एसएल दिखना शुरू हो जाए जहाँ पे हमें नहीं दिख रहे। सो इन सब को देख के हमें पोजीशन बनानी पड़ती है। सर की एंट्री हो गई थी यहाँ पे एट दिस कैंडल यहाँ पे, एंड उन्होंने यहाँ तक अपना टीपी बुक कर लिया था। हमने आज लेट काम किया तो हमारा दिक्कत हो गया। ऑल्सो कि पोजीशन यहाँ पे क्यों बुक की, एक तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पीओआई जोन था, क्योंकि कल यहाँ पे सेलर्स ने हमने प्रेशर लगाया था, यही से सेलिंग इनिशिएट हुई थी। सो आज इट बिकम्स अ क्रिटिकल सपोर्ट फॉर अस। ऑल्सो वाई वी बुकड अ पोजीशन हेयर एंड वाई डिड नॉट वी वेट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ 46,500 लेवल। तो उसका रीज़न था कि निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका था डाउन साइड का। इन दीज केसेस दिस इज अ मेजर लर्निंग पॉइंट कि इन दीज केसेस जब यहाँ पे सॉरी निफ्टी कहाँ पे गया हमारा, कहाँ गया भाई कहाँ गया, निफ्टी इज़ नॉट शोइंग। निफ्टी में 1 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा। हाँ, सो देख सकते हो निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया था आपका। एंड इन दीज केसेस जब एक इंडेक्स आपको मोमेंटम कर दे तो एंड दूसरा उतना ना कर पाए, सो इन दैट दोज केसेस द मार्केट स्टार्ट्स टू होल्ड अप। सो बैंक निफ्टी होल्ड करना स्टार्ट कर सकता था, एंड इन केसेस में हल्की सी ग्रीन कैंडल बनते ही प्रॉफिट कम हो जाता था। सो दैट्स वाई एक पीओआई जोन था एंड प्रॉफिट होल्ड कर रहा था मार्केट। सो दैट्स वाई वी बुक द पोजिशन एंड वी डिड नॉट वेट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ 46,500 लेवल, जहाँ पे हमें एक अच्छा खासा पुश मूव दिख सकता था, अच्छा खासा जंप मिलता अपने प्रीमियम में। So that's it for today, guys. We will see you tomorrow. Tomorrow Saturday. We will see you on Monday. All right. God bless you all.